So in the previous class, we discussed about how this problem was being done, right? We discussed how we can calculate for y equal to 4.2. That means x equal to 4.2. What will be the value of y? We calculated that in the previous class, right? And this was our answer. Now, today what we will be planning is, first of all, I will try to teach you all basics about coding in Octave, okay, so that we will get an idea how we can write a program for this particular problem. Okay, so let us just know about slight basics, okay, and then I shall begin. So for telling you all the slight basics of coding, first you have to know that what do you mean by various what I should say, the terms and conditions which are there. Like if there is, suppose, how we will be writing a matrix in any Octave or MATLAB format. Octave or MATLAB, Octave or MATLAB, this will be the interface that we will be what I should say using in this entire course. Okay, now what are the basics of this? First of all, there is the file, whatever script you write, it will be saved as .m. Okay, in both of them it will be working. And if there are the values, the workspace, it will be saved as .mat file. Okay, Octave is an open source, so you can access, you can download on your personal computers, no issues with that. Okay, whereas MATLAB, our institute has purchased MATLAB, so we can use that. Second thing is how we can write any matrix in this. So if I have an A matrix, which is a row matrix, B matrix, which is suppose a column matrix, and C matrix, it is a rectangular matrix, suppose. Right? So how we will be able to write these things in MATLAB or Octave format? Okay, so this A, it will be written as this. In Octave format will be written as simple row matrix will be A equal to 1, 2, and 3. So for what I should say, with space, when you write it with space, it changes the column, right? How we will be writing B? For the B matrix, okay, 4, 5, 6, I will be writing it like 4 semicolon 5 semicolon 6. This particular thing, okay, this semicolon, what it helps us is it changes the row, right? And finally, how I will be writing C? Can anybody tell me? 1, 2, 1 3, 2 3 semicolon 4 semicolon. 5. Yes. Yes. So I believe that this, how we have to write the, what I should say, various matrices, that you are well aware now. Second thing is, you must know about few things. How the loop statement works, do you know that? So there can be, generally the ones that we will be using will be for loop or while loop. In case of for loop, you have to have what I should say, iterations. You have to define that this will be the number of iterations that, or this will be the number of times your loop will be running. Whereas in case of while loop, you can do this like just like for also. However, you can put some conditional statements. What do you mean by conditional statements? Conditional statements is like if else statement.
if else. Okay, if this then this, else this. You must have studied these basics during your C programming, etc. However, here the format is pretty simple, right? So mostly we will be using this itself, and these all will serve our purpose. If there's anything, something new comes up in between, I will let you all know. Okay. So now let us just try how we can write the program for forward interpolation. First of all, before writing the program, let me just write down the polynomial expression that we finally need to obtain. So from forward difference, the polynomial expression that we finally need to obtain, what it is? Can anybody reiterate? Y naught plus first forward difference upon h, which is the space between the two, what I should say, independent variable, x minus x naught plus second order forward difference 2 factorial h square x minus x naught x minus x1 plus dot 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 dot. Let us just write down the final one itself. Y naught upon n factorial h power n x minus x naught x minus x1 dot 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 x minus x, right? N minus 1, sorry. Yes. So this was the polynomial expression that we were looking. Now what I have to do is I have to write the MATLAB code for the forward difference. MATLAB or Octave. Octave code. Okay. So first of all, in any coding process, what we have to do is we have to initialize the values first. Okay. So for knowing the polynomial, first what we have to do is we have to know what is the order. Okay. So whenever if we want a MATLAB or Octave code to not to execute any statement, then we generally use this symbol. Okay, percentage symbol. If we will put the percentage symbol, it will not execute that particular statement. So program for forward interpolation. Now, first of all, initialization, so that we need to like what are the number of data points that we have. Okay, so the number of data points that we have, then the x values, that means the, and y values, the data points all itself. Okay, so these three details that we have to enter. So we can directly write the, what I should say, the enter the values, or we can ask the user to enter the value. Okay, any one of that. If I have to directly write, so I will write the matrices or the directly the number. Suppose our number of data points in that particular question was 7, so I can directly write down this 7 here. Or what I can do is I can ask. For asking, what I'll have to write here is input. Okay, input under bracket, you write down that what you like the question that it will ask, like enter the number of data points. This will be the statement that it will print, and you have to enter the value and it will take up into this. Secondly, similarly, you can use the same symbol and you can write for input here as well as for y. Okay, input, enter the values of x, enter the values of y, similarly.
so on and so forth. Now, what I have to do is I will have to generate the forward difference table, this particular table that I have to generate. Now, for generating this particular table, what I will do is, as you can see here in this table, firstly, what I have done is here we have X, here we have Y. So these are the first two columns are defined, and we have to find the rest of the columns, okay, which are the forward difference, right? So let us just first what we have to do. And one more thing that need to be known is that there were how many? 7 data points. Okay, for 7 data points, if I move forward, okay, 1, 2, 3, 4, and I believe 5 and 6. So for 6th order forward difference, I can go on, right? So if number of columns, that how many number of columns are there? How many columns, the number of columns will be there in a matrix that I have to define for this? The number of rows are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the number of columns are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Right? So what I do is I beforehand define a matrix A, okay, which will be for the forward difference, and I keep some space for it. So I define it as a null matrix. For that, what I have to do is I have to write zeros, number of rows will be whatever the number of data points we have, that means n, and number of columns will be, like when the number of data points were 7, the number of columns were 8. So if the number of data points are n, this will be what? N plus 1. Plus 1. I provide a semicolon at the end of each statement so that it doesn't print on the command window. Okay, that need to be done. Now this, we have created the space for it. Now what we do is this X and Y, we assign the first and second column of this A matrix to this X and Y, right? So I start a for loop. For I equals to 1 to n. Now when I use this colon, it means that it will take the values 1, 2, 3, 4, 5, 6 till n. Okay, so this is the iteration that I am going for. The loop will run from 1 to n. Okay, that means the number of data points that we have. And we have to end this loop also. In between, let me write the statements. So first of all, A, the X values. The X values we have to input in the first column, right? So A, I, 1 for the first column 1. It will obtain the values of X, I, 1, because we have entered these values also in a column matrix manner. The next A, I, 2, which is the second column, it will be Y, I, 1. Is it clear? So now what we have done is it will take up the values one after the other. It will take up the values. So first it will fill these two rows. It will fill. Okay, this one, these 2 rows it will fill. Now what we have to do is we will be simply generating the entire the forward difference table. This is a statement that I am writing so that whenever you read it, it becomes easy for us.
So when we have to generate this forward difference table, what we have to do now? Sir, Yes. can you define that A matrix again? Can you repeat it? Why we have defined the A matrix? That's what you want to know. Yeah. Okay, it is just so that the space is there. It is a good practice that you predefine the space, okay, for that particular values. That means if I have already created a matrix, so that time it's a null matrix that I have defined. Now we are assigning the values. ओके, नल मैट्रिक्स डिफाइन करने का यूज ये हो गया कि वो पहले से जगह बना देता है कि इतनी जगह मुझे लगेगी वैल्यूज डालने के लिए। वरना क्या होता कि जब ये लूप रन कर रहा है ना, देन इट विल हैव बीन क्रिएटिंग वन आफ्टर द अदर स्पेस। मतलब वो सबसे पहले ए को पहला एक वैल्यू दिया, वो उसको एक क्या बोलते हैं उसको, 1x1 मैट्रिक्स मान के किया। फिर उसके बाद उसको जब सेकेंड बार लूप चलेगा तो उसको 1x2 मान के चलेगा। तो मतलब वो एक एक लूप पे उसके लिए जगह क्रिएट करते जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ए मैट्रिक्स नहीं भी डिफाइन करता हूं ना, ऐसे इनिशियलाइज नहीं करता हूं, उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी हम कोई बड़ा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इफ यू प्री डिफाइन सम स्पेस फॉर इट, तब क्या है, लूप स्टेटमेंट थोड़ा कंप्यूटेशनली एफिशिएंटली काम करेगा। गॉट द आइडिया? Yes, sir. Okay. Now, when we are going for this forward difference table now, we have to generate. So, अब क्या करना है, हमारा पहला और दूसरा x and y, this x and this y that we have entered. Now what we have to find? We have to find all these, the forward difference things. So, ये कौन सा है? ये आपके थर्ड कॉलम होगी, राइट? ये थर्ड कॉलम होगी जिसके अंदर फर्स्ट हमारा हो रहा है, और ये थर्ड कॉलम के ऑपरेशन में हम लोग सेकंड कॉलम की वैल्यूज के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। जब हम फोर्थ पे जाएंगे तब हम थर्ड कॉलम की वैल्यूज पे एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारे ये वैल्यूज आए, राइट? यस और नो? यस सर। तो अब क्या है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा जे है किसके लिए? कॉलम के लिए। सो जे विल बी फ्रॉम, अभी मैंने आपको दिखाया थर्ड से शुरू होगा, और थर्ड से शुरू होके कहां तक जाएगा ये? इफ यू लुक इनटू इट, थर्ड से शुरू होके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ तक जाएगा, एट्थ कॉलम तक जाएगा, राइट? है ना। तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मेरे कितने थे? 7 होने से वो कहां तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है, राइट? तो यहां पे मेरे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या थे? n। तो ये कॉलम कहां तक बनेगा? Am I clear? यस सर। तो ये हो गया आपका इनिशियल कितने हमारे हैं। अब इसके अंदर आई हैव टू राइट द सेकंड फॉर लूप, क्योंकि अभी वो कॉलम और रो दोनों को तो चेंज करना पड़ेगा ना हमें ऑपरेशन के टाइम पे। सेकंड क्या लिख रहा हूं मैं? लेट मी जस्ट कंप्लीट, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट टू यू वंस मोर। सो आई की वैल्यू जो है, अब जब मैं ऑपरेशन करूंगा उसके अंदर में, हाउ इट इज गोइंग टू वेरी, मतलब जब मैं इसके अंदर में आई एम डूइंग 93 माइनस 23, है ना, और इस तरीके से आई विल डू दी ऑपरेशन एंड आई हैव टू मूव ऑन। यस और नो? ये रो है हमारी, राइट? ये रो है, तो आई की वैल्यूज में क्या आ रहा है? रोज को चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रोज कहां तक जा रही हैं? हम सबसे ऊपर वाले से लेके नीचे वाले तक रोज को करेंगे, राइट? तो ये कितने हैं? 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पे कितने हैं? 6। यहां पे कितने हैं? 5 4 3 2 1। सो इफ यू कैन सी हेयर कि जब हमारा कॉलम थर्ड में है देन वी हैव 6, जब कॉलम हमारा फोर्थ पे है देन वी हैव 5, जब हमारा कॉलम फिफ्थ पे है देन वी हैव 4। इस तरीके से इट इज वर्किंग ऑन। यस और नो? सो व्हाट आई विल डिफाइन हियर इज I will vary from 1 to number of rows कैसे कम हो रही है? n minus j minus 2,
j माइनस टू मतलब जब सबसे पहली बार मैं फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो एक कम होता है, राइट? तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जैसे हमारे 7 थे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने थे? 7 डेटा पॉइंट्स थे, फिर बाद में 6 हो गए, राइट? इस कॉलम के अंदर 6 है ना, तो मतलब जब मैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूं तब मेरा एक कम हो रहा है, सेकंड निकाल रहा हूं तो एक और कम हो रहा है, राइट? इट बिकम्स 5। यस, सो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से पहली बार में एक कम हुआ, फिर दूसरी बार में 2 कम हुआ। तो इस तरीके से व्हाट आई हैव डन इज j माइनस टू कर दिया मैंने। j माइनस टू मतलब j हमारा थर्ड रो पे आ रहा था पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट? 3 पे आ रहा था पहला, हमें 1 माइनस करना था ना 7 से। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, n की वैल्यू 7 डालूंगा, तो 7 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6। फिर नेक्स्ट पे जब जाएगा ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या रहेगा? 7। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5। यस और नो? yes sir. इस तरीके से इट विल बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट क्या होगा? दीज लूप्स विल बी रनिंग, आई एम कंटिन्यूइंग इट हेयर, राइट? मेरे को दोनों लूप को एंड भी करना होगा फिर। इससे पहले हाउएवर आई हैव टू राइट द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है वो? इट इज ये डेल्टा वाई नॉट इज व्हाट? डेल्टा वाई नॉट इज y1 माइनस y2। तो मतलब जिस रो पे हम काम कर रहे हैं उससे एक रो पहले के ऊपर पे हमें ऑपरेशन करना है, और क्या करना है? जिस पर्टिकुलर पॉइंट की है उसके एक आगे वाला पॉइंट और उसके एक पीछे वाला पॉइंट। हम लोगों ने यहां पे भी लिख ही रखा है बेसिक जो आपका है कि इट इज yi+1 माइनस yi फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यही चीज हम यहां पे लिखेंगे। लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ओके? सो एक स्टेटमेंट बस हमें लिखना है। सो a i कोमा j, i कोमा j क्या हो गया? अभी हम लोग j थर्ड है ना, तो ये सबसे थर्ड वाला जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पे जनरेट होएगा। दिस इज इक्वल्स टू a, एक पहले वाली रो मतलब j माइनस 1 है ना, और यहाँ पे a कौन सा होगा? अगर ये ith वाले वैल्यू के लिए हम निकाल रहे हैं तो i+1 वाला लेंगे, माइनस a i, और ये भी j माइनस 1। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया आपको? प्लीज, ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जो डेल्टा वाई हम निकालते थे, डेल्टा वाई आई क्या होता है? yi+1 माइनस yi, तो वही चीज है ये। यस, और j जो है ये क्या है? कॉलम बता रहा है ना, तो अभी हम क्या है? थर्ड वाले कॉलम के लिए निकाल रहे हैं, और हम वैल्यूज कौन सी यूज करेंगे? सेकंड वाली। when I was doing the forward difference for this particular thing, third row, I was using this minus this minus this minus this minus this, right? So वही अब करेगा। अब अगर मैं इसको लूप के तरह किसी देखूं तो क्या होगा? सबसे पहले वो j की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 1 होगी। सो a1,3 है ना, a1,3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? a 2,2 माइनस a 1,2। ये क्या है? ये है a 2,2, ये a 1,2, और ये क्या दे रहा है हमें? a 1,3। समझ रहे हैं आप? एनी कंफ्यूजन? इट्स टोटल साइलेंस हियर। No, yeah, got it. थोड़ा आप लोग को खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी एक बार आएगा एग्जीक्यूशन जब देखेंगे हम, ठीक है?
सो व्हेन दिस थ्री, अब जब सेकंड टाइम जब होगा तब सेकंड ये 3 रहेगा, यहाँ अंदर वाला लूप चलता रहेगा। सो जब मैं थर्ड पे आ गया हूं, तो वो एक बार जो ऑपरेशन करेगा, लेट मी टेक सम अदर कलर, तो एक बार जो ऑपरेशन करेगा, ये ए आपके ये कितना है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है ए, सेकंड रो में सेकंड कॉलम है ए, है ना, आपके थर्ड रो में सेकंड कॉलम है, इस तरीके से है। तो सबसे पहले मेरा ए 1,3, ये आ गया ए 2,3, ए 3,3, ठीक है। सो जब ए 1,3 निकालना है, इट विल बी ए 2,2 माइनस ए 1,2। ए 2,3 जब निकालना है, इट विल बी ए 3,2 माइनस ए 2,2। यस, अब ये देखो यहाँ पे किस तरीके से ये बॉइल डाउन हो रहा है। सबसे पहले आपके क्या रहता है इसके अंदर में, पहले अगर मैं इसको करूं तो जे की वैल्यू तो मेरी 3 फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अंदर वाला लूप अभी चलेगा, तो अंदर वाला लूप कैसे एक एक करके एग्जीक्यूट होगा, पहले वो ए 1,3 जाएगा निकालेगा, फिर ए 2,3 निकालेगा, और कहां तक निकालेगा ये, n माइनस जे माइनस 2। सो अगर मेरे n के वैल्यू क्या है, 7 है इस प्रॉब्लम के हिसाब से, है ना, और j की वैल्यू मेरी क्या है, 3 है। तो 7 माइनस 3 माइनस 2, इट विल बी टिल 6। सो a 6,3 तक जाएगा, ठीक है। और इस तक में इसका यहां पे क्या स्टेटमेंट आएगा, ये क्या आएगा, i+1, सो 2,2 माइनस a 1,2। सेकेंड केस में क्या होगा, अब ये हमेशा j जो है 2 में ही रहेगा, क्योंकि हम सेकेंड वाले पे ही कर रहे हैं सारा एग्जीक्यूशन। ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फाइनल वाला क्या आएगा, यस। इससे क्या हो गया है, अभी हमारा एक बार एक कॉलम थर्ड कॉलम बन गया, फिर इट विल गो फॉर कॉलम, ये जे की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू ये 3 से अब फिर 4 हो जाएगी, एंड देन अगेन दिस सेम एक्सरसाइज विल रिपीट। आप लोग समझ में आया, अब समझ में आया। हाँ, तो अब इस तरीके से व्हाट विल हैपन इज, इट विल एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, एंड देन यू विल गेट द एंटायर टेबल जनरेटेड टिल द फाइनल। तो इससे क्या हो गया, हमारा अभी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज जनरेटेड नाउ। Now the forward difference table is generated. Now let us see what will be the next step. Now once the forward difference table is generated, now we have to know what is the uniform interval. In uniform interval क्या है मेरा, if I take ये sorry ये black से कर रहा हूं मैं ना, I should use the same color notations, it becomes easy. So अब मैं क्या करूंगा, यूनिफॉर्म इंटरवल कैसे निकालना है मुझे, यूनिफॉर्म इंटरवल फॉर एनी टू, आई कैन सिंपली राइट द प्लस एंड माइनस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मतलब मैं अगर यूनिफॉर्म इंटरवल, क्योंकि x कौन से रो पे है, x है फर्स्ट रो पे, ठीक है। सो फर्स्ट रो का आपके सेकेंड माइनस फर्स्ट रो का फर्स्ट को अगर मैं माइनस करूंगा, दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी माय h। सो h की वैल्यू भी आ गई हमारी, ठीक है। नाउ आवर टास्क इज वी हैव टू जनरेट द पॉलिनोमियल। फॉर जनरेटिंग द पॉलिनोमियल, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें पहली चीज तो ये चाहिए कि आप पॉलिनोमियल में कितने नंबर तक जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कितने, ये n+1 डेटा पॉइंट्स थे जब, तब यहां पे मेरा nth डिग्री पॉलिनोमियल तक गया था,
Yes. When I was having n plus 1 data points, it went on to n plus 1. Okay. Now it depends upon me कि मेरे को quartic करना है, what type of, whether I want a cubic, linear. Okay. तो ये मेरे ऊपर में है कि मैं कैसा चाहता हूं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर कैसा चाहता हूं मैं मेरा पॉलिनोमियल को, राइट. सो अगर जितना मैं ज्यादा लूंगा उतना प्रिसाइज मेरी वैल्यूज आएंगी. सो अगर मैं एक्सट्रीम लूंगा, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन मी. सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक तो आपका ले लूंगा मैं के. के क्या है, के इज इनपुट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट यू रिक्वायर. इनपुट स्टेटमेंट, degree of polynomial, and second x. x क्या है, किसके लिए मुझे निकालना है, फॉर लाइक दैट प्रॉब्लम वी हैड व्हाट, x इक्वल टू 4.2 पे हमें y चाहिए था, राइट. सो एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y is required. x for which y required. Yes. So this is what I need. अब इस चीज के लिए you can see here क्या हो रहा है, हमारा y0 है, फिर उसके बाद ये आ रहा है और ये आ रहा है. तो हर एक के अंदर आप देख सकते हो ये डेल्टा y0, डेल्टा 2y0, ये सारे जो हैं वो हम यहां से लेंगे टेबल से, जो टेबल हमने जनरेट कर रखी है. x माइनस एक्स नॉट एच, तो x नॉट कौन सा है, x नॉट है डेटा पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट रो, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम, सॉरी, फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. दैट मीन्स आप इसके अंदर में जो 1, जहां जहां 1 है, ओके, कॉलम के वाले साइड में 1 जहां जहां है, सो दैट वी विल एंटर. ठीक है, x माइनस दिस, और x क्या है, x तो ये हमने इनपुट ले ली है. ओके, सो व्हाट आई हैव डू इज आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस आफ्टर दिस टू गेट द ईच एंड एवरी टर्म. यहां पे हमारा 2 फैक्टोरियल है, तो इसके लिए क्या है, अगर मैं लूप में 1 2 3 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई में लगा दूंगा तब भी मेरा ये 2 फैक्टोरियल जनरेट हो जाएगा. h स्क्वायर h क्यूब ऐसा ऐसा है, तो इसको h को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा पर लूप, तो ये भी मेरा काम आ जाएगा. और फिर पर लूप मैं जो ये मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस एक्स नॉट इंटू x माइनस x1, all these things that will be there. So what I have to do, I have to generate one product loop, and then after each loop it should be added also. So product loop and summation loop, that too I have to initiate. So उसके लिए क्या कर देता हूं मैं, सबका पहला वाला पॉइंट जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूं. So सबसे पहले फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, y0 टर्म के लिए प्रोडक्ट में क्या है, y0 टर्म के लिए मेरा क्या होता है, ये y0 इज a, सेकेंड कॉलम में पहला वाला, राइट, मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या है 1. सेकेंड केस में क्या होगा मेरा टर्म, ये है a, थर्ड कॉलम में पहला वाला, अपॉन h, और यहां पे आता है अपॉन h, और यहां पे आएगा x माइनस एक्स नॉट, क्या हो गया a, पहले कॉलम के अंदर में पहला वाला, राइट. थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, a, ये आ गया फर्स्ट के अंदर फोर्थ, अपॉन फिर इसके अंदर में यहां पे क्या है 1 है, यहां पे क्या है 1 इंटू 2 है, और इंटू h हो जाएगा, है ना. और ये क्या आ रहा है, x माइनस a 1,1 इंटू x माइनस a, अब क्या होगा सेकेंड रो पे 2,1, राइट. a 1,1 कौन सा है,
This is A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, right, in this manner. Sorry, my bad. मैंने कॉलम चेंज कर रहा हूं. किसी ने कोई गलती भी क्यों नहीं बोली? I was changing the columns. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I was about to speak, but है ना, हमारा कॉलम तो हमेशा 1 ही है. 1 right. यहाँ पे सेकंड आएगा, कॉलम हमेशा हमारा 1 है. थर्ड आएगा, कॉलम हमेशा हमारा 1 है. फोर्थ आएगा. डिड आई रिपीटेड द सेम मिस्टेक देयर आल्सो? नहीं, यहाँ पे ठीक है. यहाँ पे ठीक है ना. ये आपके कॉलम के, ये है आपका फर्स्ट कॉलम की वैल्यू. एनीवेज, सो दिस इज द हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड. So let me just define, cause ये multiplications होंगे, so let me just define it one after the other. So मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक PR product term define कर रहा हूँ, which is 1. तो सबसे पहले इसका है ना ये 1, और दूसरा summation polynomial के लिए I am defining it as P. वो क्या है? A1, 2. ये मैंने डिफाइन कर दिया. इज इट फाइन? ये मैंने डिफाइन कर दिया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, वेयर एम आई? यस, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, सॉरी, नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू जनरेट इट राइट अवे. तो फॉर लूप चलाना है मुझे. फॉर लूप, अब क्या फॉर लूप चलेगा? ऐड होने के लिए. तो जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतने नंबर ऑफ टर्म होगा. अगर मेरा फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो यहां तक जाएगा, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो यहां तक जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो पहला टर्म तो हमने डिफाइन कर दिया. अब क्या है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो वो कहां तक जाएगा? के. जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए वहां तक जाएगा, के. ठीक है. और सिर्फ एक ही लूप लगेगा. अब इसके अंदर क्या है? आई हैव टू राइट पी आर. आई विल हैव टू राइट पी आर प्रोडक्ट. ओके. सो प्रोडक्ट टर्म क्या है? सबसे पहले केस में आपके प्रोडक्ट टर्म में क्या क्या है? ये सारी चीजें हैं. अब नाउ यू सी कि ये सब चीजें आपकी वेरी हो रही है प्रोडक्ट टर्म पे. ठीक है. ये वाला पार्ट. सो यही वाला पार्ट मैं यहां पे लिखूंगा, पी आर इंटू एक्स माइनस ए आई, 1. क्योंकि यहां पे क्या है? हमेशा फर्स्ट रो ही रह रही है और आई चेंज होगा. दैट मीन्स एज यू कैन सी हियर 1, फिर क्या हो गया? यहां पे 2 आ गया, राइट. तो वो चेंज हो रहा है. फिर नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में आई हैव फर्स्ट 1, फिर 1 इंटू 2, इस तरीके से हो रहा है. तो यहां पे मैं आई लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मैं एच कर दिया. ठीक है. सो जब सबसे पहली बार चलेगा तब यहां पे x a 1, 1 अपॉन 1 इंटू एच, राइट. जब सेकेंड टाइम चलेगा तो ये जो पूरी वैल्यू है ये पी आर के ऊपर असाइन हो जाएगी, है ना. जो यहां पे आ गया है ये पी आर पे असाइन हो जाएगी. x a 1, 1 और h. और सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा? ये सारे 2 वैल्यूज डल जाएंगे. कहां कहां? x a 2, 1, यहां पे 2 आ जाएगा और एक और h आ जाएगा. यस, गॉट द आइडिया? yes, sir. एक एक करके ये पर्टिकुलर टर्म उसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा. जैसे आप यहां पे देख रहे हो, पहली बार मेरे पे x a 1, 1 और h था. नेक्स्ट टाइम भी ये 3 चीज तो है ही. ये देखो, ये 3 चीज तो है ही. ये भी है, ये भी है और ये भी है.
और फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर में ये टर्म ऐड हो जाएगा, ये टर्म में आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। अब इस तरीके से हमारे टर्म्स बनते जाएंगे। एक और स्टेटमेंट इसमें आएगा, दैट विल बी रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे होगा? P मैं सेम पेज पे रखना चाह रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर इटसेल्फ। ओके, P पॉलिनोमियल का है। सबसे पहले a1,2 है, मतलब ये y0। सेकंड वाले में क्या आएगा? P प्लस ये मल्टीप्लीकेशन से इंटू a1,3, a1,3 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद a1,4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला टर्म जो है ये चेंज कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल PR मल्टीप्लाई बाय a1 तो है कॉमन। अब जब मेरा आपके पहला लूप चल रहा था, when this was 1, this was what? 3. When this was 2, this was what? 4. Yes? पहले लूप के अंदर 1 है तो ये 3 है, सेकंड लूप में ये 2 आ रहा था तो ये क्या है? 4 है। सो मतलब जो मेरी i होगी, i प्लस 2 ये होगा यहां पे, राइट? So this will be what? 1 comma I plus 2, and this is what the forward operator that we have. ठीक है? Then simply end. At this end, the result that we will get, that means your y value, y will be what? That y.4.2 na, this will be what? This will be the p that we get finally at the end of this execution. Any doubts that you need to ask? Any doubts? Sir. Hmm. Sir, at the starting, sir, sir, where we are asking the user to input the value of x and y Yes, at the yes. starting of the program. Mhm. Sir, there any loop would be required, because sir, we have 7 inputs for No, x and no, 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 no. It won't be required. Let me just show it to you, the entire code itself. मुझे आपको कोड ही दिखाने देते हो, ठीक है? वेट अ सेकेंड, एस्केप कर दें इसको, नहीं, आई हैव टू कीप इट, लेट अस कीप दिस, ठीक है? I have written down the code for you all. This is in Octave, the open source that I was talking about. ठीक है? Program for forward interpolation. This is how it looks. N equal to input number of data, y, this. We don't have to go for the loop. So let us just now execute it. ठीक है? ये सेम है, वो जो मैंने लिखा है आपको, वो सेम चीज इसमें लिखी हुई है। Let me save it into the desktop as code 1. Let me save it as code 1. So now अगर हम रन करते हैं इसको कमांड विंडो में, देयर आर सम इश्यूज, नंबर डेटा पॉइंट्स, एरर कोड लाइन 2,2. Okay. It should have been okay. It should have taken. Let me just check it once again. I hope that it should execute. Yes, now it is okay. Okay. So हमारे केस में कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट थे हमारे क्वेश्चन में? 7. राइट? मैंने लिख रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रही है? एंटर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो ये भी मैं क्या करूंगा? कॉलम मैट्रिक्स के टर्म में एंटर करूंगा। सो कॉलम मैट्रिक्स के टर्म में हाउ आई विल एंटर? 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. Yes, तो हमको लूप की जरूरत नहीं पड़ी. अब क्या बोल रहे हैं? एंटर द वैल्यूज ऑफ y. लेट अस जस्ट एंटर दैट. क्या है हमारे एंटर y की वैल्यूज क्या है? 23, 93, 259, 569, 1071, 1813, 2843. राइट. अभी क्या बोल रहे हैं? एंटर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रिक्वायर्ड. ये क्या है? 4.2. एंटर द पॉलिनोमियल. हमने कितना डिग्री पॉलिनोमियल तक गए थे हम? जो भी है हम लोग फाइनल तक जा लेते हैं. ये मतलब 7 डेटा पॉइंट है, तो लेट अस गो फॉर 8. not 8. Degree of polynomial. If we have n plus 1 data points, the degree of polynomial is n. So if we have 7 data points, the degree of polynomial maximum will be 6. Value is what? 104.49. हमारी क्या वैल्यू थी? यही थी, right? 104.48. 48. Let us just see the four difference table now. 488. Let us just see the table now. ये देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जनरेट हो गई. अपने आंसर से मिलाओ. 70, 166, 310 यही है ना, और ये 0. यू कैन सी दैट, क्योंकि मैंने नल मैट्रिक्स पहले से डिफाइन कर रखा था, तो उसने सारे 0 ले रखा है पहले से. ये 96, 144, 192, 240, 288, देन 48, 48, 48 और 0 से. x की वैल्यूज कैसी दिख रही है? x की वैल्यूज ऐसी दिख रही है. ठीक है. y की वैल्यूज वो ऐसे दिख रही है. ठीक है. Any questions on this? So I hope that today you all learned how to write